PCB اسکولز میں میراتپور میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں بچیوں ٹیچرز یہاں کے رہائشیوں السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں زاہد سعید صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور یقیناً ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ کام جو وہ پچھلے 27 برسوں سے کر رہے ہیں، اور یہ قدرتی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب اس میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ آپ کی اس میں ترقی ہوتی ہے، آپ اس اپنے مقصد میں آگے بڑھتے ہیں، تو دلی طور پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ زاہد سعید صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس وقت خوشی ہو رہی ہوگی، ہونی چاہیے، اور میں اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں بطور وزیر تعلیم ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو تعلیم کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت کی اور ریاست کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ آئینی طور پر یہ ریاست پاکستان کی اور ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یا پھر ہمارے اپنے محکموں میں جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، اسی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ بہتری آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جو بغیر کسی غرض اور لالچ کے تعلیم کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا ہیلتھ کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ میری مدد کر رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام بطور وزیر تعلیم میرا ہے، یہ میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں، یہ صوبہ سندھ کی حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں نے جب سے وزارت تعلیم سنبھالی، تقریباً 16 برس ہوا ہوگا، بدقسمتی سے وہ مجھے محکمہ تعلیم ملا تو ساتھ ساتھ کرونا بھی آ گیا، تو بہت ساری چیزیں جو سوچی تھیں، جو پلان تھا، وہ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال جو حالات تھے اس میں رہ کر جو بہتری ہو سکتی تھی وہ کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تسلی بخش میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس دوران میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان تمام اداروں کو میں اپنے ساتھ چلاؤں جو کسی بھی سطح پر صوبے کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی طرح سے تعلیم کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ اگر آپ کوئی سرکاری اسکول اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آئیے، ہم آپ کو مدد کریں گے، آپ اسکول اڈاپٹ کیجئے اور وہاں کی تعلیم کے معیار کو بہتر کیجئے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیجئے، وہاں پڑھنے والے بچوں کے حالات کو بہتر کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کی مدد کریں، وہ کر بھی رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یقیناً یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی جلدی صبح اٹھ کر یہاں آ کر کسی کے اوپر کوئی احسان کیا، کوئی مہربانی کی۔ میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسے تمام لوگوں کو انکریج کروں، اور مجھے یقیناً کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں جلدی اٹھ گیا ہوں، میرا ہر اتوار اسی طرح گزرتا ہے، کوئی خاص اتوار نہیں ہے۔ تو یہ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ صوبہ سندھ کے ایک ضلع کے ایک شہر میں آپ نے ایک بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے، توفیق دے، آپ سندھ کی ہر تحصیل میں، ہر تعلقے میں، ہر یوسی ویسی بلڈنگ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدد کریں گے۔ اور جس طرح زاہد سعید صاحب نے بتایا کہ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ ایک گورننگ باڈی میں وہ ممبر بھی ہیں، اور وہاں بھی ایک بہت زبردست بے نظیر مزدور کارڈ کا جو سلسلہ میں شروع کیا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلیم جڑی ہوئی ہے، اور وہاں جو تعلیم کا کام کرنا ہے اس میں ہمیں لوگوں کی اور مدد کی ضرورت ہے۔ فنڈز ہم فراہم کریں گے،
لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے، اور وہ کارڈ لینے والے ہر مزدور کے بچے کو تعلیم مفت دیں گے، اچھی تعلیم دیں گے. اس کے لیے ہمیں اس کام کو مزید تیز کرنا ہے، تو ہم اور کریں گے. ابھی تک آپ کے صرف کیا گیا، لیکن میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں جو حکومت کے پاس اسکول ہیں، آپ کے 154 اسکول ہیں، اور یہ شاید حکومت کے لیے تو چھوٹا نمبر ہے، لیکن کسی ایک انڈیپینڈنٹ نجی ادارے کے لیے، چند افراد کے گروپ کے لیے ایک بڑا کام ہے. 29,000 بچوں کو اسکول پڑھانا، اچھی تعلیم دینا حکومت کے لیے تو چھوٹا کام ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے بڑا کام ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی حیثیت ہماری نظر میں بڑی ہے. تو اگر ہم آپ کے جیسے اس صوبے میں تو 200-400 آدمی کر لیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک گروپ جو ہے وہ 30,000 بچوں کو پڑھا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ تک جانا ہے، اور 100 آدمی کر لیں تو 1 کروڑ تو کام ہمارا ہو گیا. تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کر حکومت کے جو وسائل ہیں اس کو اچھے طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا معیار ٹھیک کریں. اس وقت بھی صوبہ سندھ کا جو بجٹ آیا ہے اس میں تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا گیا ہے، جو ڈیولپمنٹ پر پیسہ خرچ ہونا ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. اور جو میں آپ کو اپنی خواہش بتا رہا ہوں، اور میں نے جن اپنے ساتھیوں سے اپنے کیبنٹ میں ڈسکس کیا، سب نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر نئے اسکولوں کو بنانے کی جو پرائرٹی ہے اس کو کہیں پیچھے کرنا ہوگا. نئے اسکول ٹھیک ہے بننے چاہیے جہاں ضرورت ہے، لیکن شاید نئے اسکولوں کے بننے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے بنے ہوئے اسکول ہیں جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جو مختلف سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، موسم کے دیگر اثرات کی وجہ سے ان کی کنسٹرکشن خراب ہو گئی ہے، وہ بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، کسی کی چھت گر رہی ہے، کسی کی دیواریں نہیں ہیں، کہیں پہ واش رومز نہیں ہیں، ہم ان کو ٹھیک کریں. اور اس سال میں انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ جو ہمارے بنے ہوئے اسکولز ہیں پہلے سے ان کی ہم ری ایبلیٹیشن کریں، ان کی ریپیئر مینٹیننس کریں، اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہاں بچے جا کر اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں. اور یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر ضلع میں کریں، ہر تحصیل میں کریں، ہر یو سی میں کریں، جہاں جہاں بھی اسکولوں کی ضرورت ٹھیک کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ کم لوگوں کو علم ہوگا کہ صوبہ سندھ میں ہزاروں بچوں کو، مستحق بچوں کو، غریب بچوں کو جن کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں اچھے اداروں میں اور ان کی فیملی بیئر نہیں کر سکتی کہ وہ فیس ادا کریں، حکومت سندھ انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ان بچوں کی فیس ادا کرتی ہے. ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو اسکوپ تھا اس کو بڑھایا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس سال سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں مزید کوئی 2 سے 2.5 لاکھ بچوں کا ہم اضافہ کریں جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے اسکولوں میں پڑھتے ہوں. وہاں یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں، سرکاری اسکول بھی ہیں، لیکن ان کے تمام اخراجات جو ہے وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اٹھاتی ہے اور وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ ایک شکایت آتی ہے کہ جی ٹیچرز نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہے. فرنیچر پچھلے کئی برسوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں خرید سکے. کچھ عرصہ پہلے کام شروع ہوا، کوئی شخص عدالت میں چلے گئے، اس سے آرڈر آ گیا، اب جا کر کہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور انہوں نے اس کے پروسیس شروع کر دیا ہے. امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں اسکولوں میں فرنیچر آنا شروع ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا سب میں آ جائے گا، لیکن آنا شروع ہو جائے گا اور سلسلہ چلتا رہے گا. اور کوشش کریں گے کہ اس سال میں کافی اسکولوں میں فرنیچر دے دیں، جہاں رہ جاتا ہے اس کو کنٹینیو کریں اگلے سال تک. جو اپوائنٹمنٹس ہیں آپ کے علم ہے کہ 37,000 جو ٹیچرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس کے لیے ہم نے ایڈورٹائز کیا، اور آئی بی ایس اکھر کے تھرو ہم کر رہے ہیں. جو پی ایس ٹی ہے، جو پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا ہے وہ 9 گریڈ کا ہوتا تھا، اس کو بڑھا کے اپ گریڈ کر کے 14 گریڈ میں کر دیا ہے. اس کی کوالیفیکیشن بڑھا کے گریجویٹ کر دی ہے تاکہ ایک اچھے معیار کے ٹیچر ہمیں ملے. اور ان کی جو ہائرنگ ہے، جو ان کا ٹیسٹ ہوگا، ریٹن ٹیسٹ ہوگا، وہ آئی بی ایس اکھر سے کروا رہے ہیں تاکہ وہ ہم میرٹ پہ کر سکیں ان ٹیچرس کو. تو یہ اگر کووڈ کا سلسلہ نہ شروع ہوتا اور یہ ویو نہ آتی تو شاید ہم ان کے پروسیس کو تیز کر لیتے، آگے بڑھاتے، لیکن کسی وجہ سے وہ ہم نہیں کر سکے. اور اب امید ہے کہ کووڈ میں کمی ہوئی ہے تو ہم وہ کام بھی جلدی شروع کر دیں گے. تو کوشش ہے کہ ٹیچرز بھی بھرتی کر رہے ہیں، فرنیچر بھی دے دیں،
जो पुराने स्कूल हैं उनको ठीक भी कर लें। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके इस फोरम से, यकीनन ही हमारे ऑफिसर्स भी बैठे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं सरकारी, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले टीचरों से बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम अपने मातहत अफसर को, अपने महकमे के किसी मुलाजिम को नहीं कहूँगा जो मैं खुद नहीं करता हूँ। मैंने जब कहा कि सुबह 9 बजे दफ्तर आओ, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं पहुँचूँगा, फिर आपको मैं कहूँगा कि 9 बजे दफ्तर आओ। अगर मैं आपको कहूँगा कि अपना काम पूरा करो, तो पहले मैं अपना काम पूरा करूँगा, फिर मैं आपसे कहूँगा कि अपना काम पूरा करो। ये नहीं हो सकता कि मैं तो सारा दिन घर पे सोता रहूँ, आपको कहूँ कि 9 बजे काम करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं, ये अल्लाह का फजल है कि अच्छा रोज़गार आपको मिला हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर और डॉक्टर ये नौकरी भी करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सवाब का काम भी है। आप जो काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, वो भी सवाब का काम है। डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है, वो भी सवाब का काम है। तो जो आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि सवाब का काम कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह को मिल रही है। और नौकरी भी कितनी है, सुबह 8 बजे जाओ, 1 बजे 2 बजे फारिग। ये कोई ऐसा भी नहीं कि आपको 9 बजे तक रात को बैठना पड़ता है। तो जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी परेशानियाँ भी कम होंगी, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा, और आपके अपने बच्चे बहुत लायक और फायक निकलेंगे। इसलिए कि आप दूसरों के बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने बच्चों पर ज़रूर तवज्जो देंगे। तो ये मेरी गुजारिश है। शिकायत होती है अक्सर सरकारी टीचर से, स्कूलों में नहीं आते हैं, पढ़ाते रहिए, टाइम पर नहीं आते हैं, तो मेहरबानी करें ये चीज़ें ठीक करें। अब ये बात मुनासिब नहीं, मतलब कोई बच्चे तो नहीं होते हैं कि मैं डंडी लेके सबके सर पर खड़ा रहूँ कि नहीं करोगे तो डंडी मारूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। ये मुनासिब नहीं है। ये मजबूरी में जो इक़दाम होते करने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले टीचर जिनकी तनख्वाह निस्बतन कम होती हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बच्चों के नतीजे अच्छे आते हैं, अपने स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। हम वो काम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो मेरी गुजारिश होगी कि उनको ठीक करें। और हम अगर अपने बच्चों को सही पढ़ा लेते हैं, अपने स्कूल ठीक कर लेते हैं, अपनी तालीम ठीक कर लेते हैं, तो ये ज़ाती तौर पर हमारी अपनी फैमिलीज़ को, अपने ख़ानदान को फ़ायदा होता है, इज्तिमाई तौर पर हमारे मुआशरे को, हमारे सूबे को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। और यकीनन पूरी दुनिया में हमारे अपने स्टूडेंट जो हैं वो नाम रोशन करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा जाए साहब, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर फाइज हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया। लेकिन ये कि मेहनत की गई, टीचर अच्छा मिल गया, तवज्जो दी गई, उन्होंने अपना मकाम बना लिया। मैंने भी कोई बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल, मैं ट्रस्ट स्कूल में पढ़ाऊँ, मैं भी गुलिस्तान स्कूल में पढ़ाऊँ, सरकारी कॉलेज में पढ़ाऊँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए थे उसके मुताबिक पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उस मकाम पर पहुँचा दिया। तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर देगा। और मैं समझता हूँ कि आपको लोगों की खिदमत करने का मौका मिला है, हमें वो करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला एक आपसे वादा है, क्योंकि वजारतों का पता नहीं चलता कि पता नहीं कब कौन होगा, मैं नहीं हूँगा, कोई भी हो, लेकिन एक आपसे वादा है, मैं वजीर रहूँ ना रहूँ, तालीम का वजीर रहूँ या किसी और महकमे का वजीर रहूँ, अगस्त 2022 में आपके साथ ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अगर आप दोस्त मुझसे बात करना चाहेंगे तो आपसे अलग कर लूँगा। अभी आगे सर, मेरापुर जो न्यू टाउन जो इलाइक़ो आहे उनमें 50 खां 70 हज़ार आबादी आहे। उनमें नियाणियुनि जी तालीम लाइ को मिडिल या हाई स्कूल न आहे। उतां जूं नियाणियूं 3 खां 4 किलोमीटर करे पंधु करे सिटीअ में तालीम हासिल करणु अचनि थियूं। हिकिड़ो त उन्हनि में स्कूल खपे हुते, ऐं ॿियो तव्हां मेरापुर में आया हो त मेरापुर जे अवाम खे कहिड़ो तोहफ़ो ॾेई था वञो पिया। को मेडिकल कॉलेज, को इंजीनियरिंग कॉलेज, को IIT कॉलेज, को यूनिवर्सिटी का अहिड़ी इस किस्म जी। जो पहली बात आपने कही, हमने जो वर्किंग की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बल्कि मुझसे पहले भी जो वजीर रहे उनके दौर से काम ये शुरू हुआ था, उसमें जो ड्रॉप आउट है स्कूल से बच्चों का, खासतौर पर बच्चियों का, कि वो कुछ जमातों में पढ़ती हैं और फिर अगली जमातों में नहीं जाती, और ख़ासतौर पर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में नहीं जाती हैं। उसकी वजह यही है कि कई इलाकों में जो सेकेंडरी स्कूल हैं वो फासले पर हैं और उनकी तादाद कम है। तो जब बच्चियाँ छोटी जमातों से जाती हैं, अगली जमात में जाना होता है तो उनको काफ़ी फासले पे जाना पड़ता है, तो अक्सर वालिदैन उनको
घर बिठा देते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं। उस पर सारी का वर्किंग की तो सूबा सिंध में हमने 6000 क्लस्टर्स बनाए और उन क्लस्टर्स में हमने देखा कि कितने क्लस्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं हैं और बच्चों को दूर जाना पड़ता है। तो 2000 क्लस्टर्स ऐसे मिले हमें जहाँ पर हमें सेकेंडरी स्कूल्स की उस क्लस्टर के अंदर ज़रूरत है, ताकि अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल पास करके निकलें तो उनको 1-8 किलोमीटर पर एक सेकेंडरी स्कूल मिल जाए, ताकि वो अपनी तालीम आगे जारी रख सकें और उनके वालिदैन को भी तकलीफ ना हो और वो करीब भेजें। तो इन 2000 क्लस्टर्स पर जहाँ सरकारी स्कूलों की बड़ी इमारतें मौजूद हैं, हम सेंटर में उसको अपग्रेड करेंगे, उस स्कूल को ठीक करेंगे। जहाँ पर नहीं है वहाँ हम नए बनाएंगे। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं जगहें, पूरे सिंध में 2000 मकामात ऐसे हैं जहाँ हमें ज़रूरत है और उस पर हमने काम शुरू किया। अब ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि 2000 स्कूल एक साल में बन जाएंगे, ये मुश्किल है, लेकिन मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अरसे में ये जो क्लस्टर्स हैं उसमें हर क्लस्टर के अंदर कोई ना कोई एक सेकेंडरी स्कूल जो है वो मौजूद हो, ताकि बच्चे भी और बच्चियाँ भी अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। दूसरी जो बात आपने कही कि मैं रायपुर आया हूँ, तो कोई इत्तेफाक से आपने जो बातें सारी कही वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा करूँ मेरे पास, मैं आपसे यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस मेरे पास नहीं है, मेरे पास स्कूल्स हैं और डिग्री कॉलेजेस तक के कॉलेजेस हैं जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, आप सरकारी हवाले से पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ तालीम के पहलू से देखें तो जो ये इफ्तिताह जिस मंसूबे का हो रहा है या जो संग बुनियाद मैंने आज रखना है, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है मेरापुर के लोगों के लिए। और मैंने ये खड़े होकर ये ऐलान किया कि ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट जो है वो पूरे सिंध में जहाँ जहाँ जिस तरह भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद उनको दरकार होगी, हम उनको वो मदद करेंगे। अभी MPA साहब ये खड़े थे, चांडियो साहब वो कहकर गए कि वो आए नौशेरा फरोज के और तालकों में, उन्होंने ऑफर किया कि वो ज़मीन भी इनको फ्री देंगे और वहाँ जो भी मदद कर सकते करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तालीम का काम है, जिस तरह से आगे बढ़े हमें बढ़ाना चाहिए। फिलहाल ये बहुत बड़ा काम यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर हमें और भी कोई काम करने की जरूरत पड़ी सरकारी सतह पर, वो भी हम करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, जिला मुशर्रफ रोड समेत मेरापुर के कई इलाकों में, देहातों में कई प्राइमरी स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं, साता ना होने के, तो आप क्या कहेंगे? मैंने अभी एक जिक्र किया था अपनी बात में कि टीचर्स की कमी है। अच्छा, 2 तरह के स्कूल हैं जो बंद हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर्स नहीं हैं और वो बंद हैं, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो मुझे नौशेरा फरोज का एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन हर जिले का नंबर है हमारे पास, कि गैर ज़रूरी स्कूल बनाए गए थे। हमने अभी पिछले कुछ दिनों में 2047 बंद स्कूल खोले हैं जहाँ टीचर्स नहीं थे। हमने और स्कूलों से एक टीचर निकाला और उस स्कूल को रीओपन कर दिया। 2243 स्कूलों में खोले। और हम एक वर्किंग कर रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी स्कूल हैं हमारी फहरिस्त में शामिल हैं, और अक्सर आपने देखा होगा लोग जाके दिखाते हैं जी गधे बंधे हुए हैं, भैंसें बंधी हुई हैं और वो स्कूल चल नहीं रहे हैं। वो इसलिए हैं कि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि थरपारकर का एक गाँव है, वहाँ 57 स्कूल, 57 स्कूल से एक गाँव के अंदर। अब जाहिर है कि अगर वहाँ बच्चों की आबादी के तनासुब से स्कूलों की ज़रूरत होगी तो 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। 50 स्कूल तो गैर ज़रूरी है ना। तो वो 50 स्कूल जो गैर ज़रूरी है वो किसी की औकात है, कहीं भैंसें बंदी होंगी, कहीं गधे बंदे होंगे, इसलिए कि बच्चे हैं नहीं पढ़ने के लिए वहाँ। तो ये इशू है और इस वक्त हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं एक बहुत बड़ी तादाद स्कूलों की, हज़ारों में है वो, जिसको हम डीलिस्ट करके अपने सिस्टम से निकाल देंगे, ताकि वहाँ जो अखराजात होते हैं हुकूमत के, कभी इजारे की बिल्डिंग बनी हुई है तो कहते हैं मास्टर भी तो बिल्डिंग बनी हुई है, कहते हैं चौकीदार भी तो बिल्डिंग बनी हुई है, तो कहते हैं नायब कासिद भी तो वो इजारे के किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वो मिसयूज होते हैं, तो उसको हम ख़त्म कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गैर ज़रूरी स्कूल्स हैं जिनको मुस्तकिल बंद करने की ज़रूरत है, जो नॉन वायबल है उनको बंद कर देंगे, जो वायबल स्कूल्स हैं उनको रीओपन कर रहे हैं। 2200 हो चुके हैं, आप कर चुके सवाल, तो वो हम जो है वो सर मुनीर मेमन KTN न्यूज़। सर हिकिड़ो कोरोना वायरस जे करे जेको तालीमी ते बहरान थियो आहे, तव्हां जेको आहे न हिकिड़ो साल शागिर्दनि खे इम्तिहान खां बग़ैर अॻिते कयो आहे, जॾहिं त ईअं पहिरीं खां 2 ते वियो, ऐं पहिरें दर्जे में जेकी एडमिशन थी थिए उहा केतिरी % थी आहे या एडमिशन थी न आहे ॿार नवनि जी? देखिए ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोविड की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई पूरी दुनिया में, हर शोबे में नुकसान हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तालीम के शोबे का नुकसान है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि उसका अजाला 100% करना नामुमकिन है। दुनिया भर में हुआ, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि कम से कम बच्चों का नुकसान हो, लेकिन बहरहाल हुआ है। हमने कोशिश की कि जब जब मौका मिलता है स्कूल खोल लें। हमने कोशिश की कि अगर स्कूल बंद है तो कोई और सिस्टम डेवलप करें जिससे बच्चों की तालीम आगे जारी रह सके। लेकिन जाहिर है कि सूबे में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इंटरनेट का इशू है, लोगों के पास वो गैजेट्स नहीं है जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ले सकें, लोड शेडिंग है, वसाइल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हमने मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाई जिसके ज़रिए जो बच्चे कंटिन्यू कर सकते थे वो करें, लेकिन अक्सरियत नहीं कर सके। अच्छा, जो प्रमोशन हमने किए बच्चों के, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी जमात जो है उनकी वैसे भी हमेशा हर साल असेसमेंट होती है और असेसमेंट की बुनियाद पर उनको प्रमोट कर दिया जाता है स्कूलों में। और 8वीं जमात तक फिर एग्ज़ाम जो है वो स्कूल खुद ही लेते हैं। पिछले साल चूँकि वो बिल्कुल एग्जाम्स के आयाम सारे निकल गए, कोविड में तो तय हुआ कि बच्चों को प्रमोट कर दिया हमने। लेकिन इस मरतबा मुश्किल ये थी कि हम 2 साल कंटिन्यूसली बच्चों को बगैर एग्जाम के प्रमोट नहीं कर सकते थे, स्पेशली बड़ी क्लास के बच्चों को। तो इसलिए ये तय किया था कि इस मरतबा हम इम्तिहान लेंगे। और जो फिर बीच में कोविड की थर्ड वेव आ गई, स्कूल बंद हो गए, तो हमने स्कूल चूँकि कवर से के लिए खुले थे तो हमने सिलेबस को कंडेंस किया, कम किया। हमने जो बच्चों के पेपर्स होते थे उन पेपर्स को कम किया और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे आ गया। और हमने उस एग्जामिनेशन के पेपर का जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया और हमने MCQs जो है वो ज़्यादा कर दिए, शॉर्ट आंसर ज़्यादा कर दिए और जो लॉन्ग आंसर थे उसको कम कर दिया। जो पेपर का दौरानिया था वो कम कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने की और ये भी हमने किया कि कोई भी बच्चा जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम देगा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, अगर उसके नंबर 33 से कम आते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा नंबर देके 33 नंबर देके पास भी कर देंगे। उसकी बड़ी तस्वीर है, उसमें मैं पास की थी किया। तो हमने कोशिश ये की है कि जो मुमकिन हो सकता है बच्चों को हम रिलीफ दें और उनकी तालीम आगे बढ़े। लेकिन नुकसान हुआ है, उस नुकसान का कोई अजाला नहीं है। अल्लाह करे कि ये मुसीबत हमारे सर से टले कोरोना की, तो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें और किसी तरह से बच्चों को फिर आगे अपनी तालीम उसी तरह जारी रखने की कोशिश कर सकें। सर हमारे सवाल है सर, तो ये बैराकपुर में सर ये 2 कॉलेज है, एक तो है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज और सेकेंड है सर गर्ल्स कॉलेज। लेकिन इस वक्त उनकी जो ग्रेडिंग है सर देखेंगे तो अगर आप विजिट करें तो छतें गिर रही हैं, उनके प्लस्तर गिर रहे हैं, लघुवारी का शिकार है। तो तकरीबन कुछ अर्सा पहले सर 27 लाख रुपये का वो टेंडर दिया गया था ठेका मट्टी उठाने का और पा रखा, जबकि वो भी काम कंप्लीट नहीं किया। देखिए मैंने अभी ये बात कही अपनी बातों में कि हमने जो इस साल बजट में जो हमारी प्रायोरिटी है वो यही है कि वो इमारतें जिनमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जहाँ मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी है और उनको ठीक करें। तो सिर्फ बैराकपुर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इस किस्म के बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करेंगे। सर एक मिनट सर सवाल आहे त जेके स्कूलनि जूं शिकायतूं अचनि थियूं, छा तव्हांजो सेल उहो कमु करे रहियो आहे शिकायतुनि ते? कहिड़ी शिकायत? सर मां 3 महीना पहिरियों शिकायत कई आहे प्राइमरी हेड मास्टर लाइ
जेको हिते ब्लैकमेलर आहे ऐं कब्ज़ा माफ़िया आहे उनजो प्रूफ सर मूंखे जो लफ़ आहे ऐं मां तव्हांखे उते शिकायत कई आहे उते सर उते मां दफ़्तो ॾिनो आहे छा उन ते सर कमु थींदो या मैं आपको समझे कि हमारे पास 3 लाख मुलाजमीन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारे मिला के 3 लाख और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स आती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर कंप्लेंट को मैं खुद देखूंगा और खुद उस पर अमल कराऊंगा, ये मुमकिन नहीं होता। एक तरीक़ेकार है, जो शिकायत आती हैं जिस महकमे से जिस ऑफिसर की वो मुतल्लिका होती हैं उनसे रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं, सारी तफसील आती है और फिर जहाँ पर मुझे एक्शन लेने की जरूरत थी मैं लेता हूँ, जहाँ किसी और ऑफिसर को लेने की जरूरत वो लेता है, तो वो कर रहे होते हैं। सर